Very good afternoon to you all. In the previous lecture, we have covered some sections related to energy science and engineering. In the very previous lecture, in the very earlier lecture, we have covered some topic related to the definition of energy, types of energy, like that potential energy, kinetic energy, thermal energy, chemical energy, etc. Then we proceed further to cover the area for the conversion of electromagnetic energy. What happened in the conversion of in the electromagnetic conversion? We have studied about the capacitor, और हम कैपेसिटर की क्या डेफिनेशन होती है वो भी बताया कि कैपेसिटर का क्या काम होता है. कैपेसिटर में बी डिफाइंड एज द डिवाइस विच इज सब्जेक्टेड टू स्टोर द चार्जेस. चार्जेस की भी डेफिनेशन बताया, प्लस चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, और टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताया. ठीक, उसके बाद जैसे कि चार्जेस के बारे में आपको बताया, तो चार्जेस के बारे में बताने के बाद कूलम्स लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद कल हम आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताए थे. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में वाई एक्सिस पे क्या था, पावर डेंसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या था, एनर्जी डेंसिटी, और इसके बीच में हम कई सारे 3-4 एनर्जी डिवाइसेस का नाम लिखे थे, जिसमें कि पहले कैपेसिटर था, फिर क्या था, सुपर कैपेसिटर, देन बैटरी, देन फ्यूल सेल. और फ्यूल सेल में हम आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होती है, जबकि पावर डेंसिटी सबसे कम होती है. ठीक, तो ये रही बात कल की. अब आज के जैसे डिवाइस का आज की स्लाइड अगर देख सकते हैं तो ये चीज़ क्लियर है कि आज हम क्वांटाइजेशन के बारे में बात करेंगे. अब क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्लासिकल मैकेनिक्स को रिप्लेस क्यों एक स्पेसिफिक टाइप की फिजिक्स ने किया, उसके बारे में आज पढ़ेंगे. बेसिकली वाई वी आर ट्राइंग टू फोकस दिस टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, because here we are covering some topic related to energy science and engineering. So we will see all the parameters related to smaller level type of energy, medium level type of energy, as well as larger level type of energy. Because of very microscopic dimension of particles, the classical mechanics were failed. That's why quantum physics took place. That's why here we are seeing the chapter of quantization of energy. Now see, now we will proceed further. Here a PPT which represents the topic energy quantization. Now that's why we will proceed to the next slide. Now from this slide all of you can see the slides related to the origins of quantum mechanics. The origins of quantum mechanics, it means quantum mechanics originates from which sources, what were the demands associated by us. Actually what happens, because we all know that the father of physics is Sir Isaac Newton. Actually once upon a time the apple is falling from the tree. Many of us see that the apples fall from upward to the ground. But what happens, Newton's prepare a mind to analyze that why this is happening. Then the principle of gravity, that's why the acceleration due to gravity came in existence. So here I want to say that the whatever the classical mechanics says about the macro level type of body's motion, but they are not fully true for the microscopic level of particles. Now see, the laws of motion introduced by Isaac Newton, all of us know. But what happens here in the second point, we can see these laws were very successful at the time of explanation of the motion of everyday
ऑब्जेक्ट्स एंड प्लैनेट्स। ओके, एक्चुअली में क्या था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो ये बड़े सक्सेसफुल थे बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए। बट क्या हुआ कि एक जगह जाके गाड़ी रुक रही थी कि क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं फॉलो हो पा रहा था वो अभी हम बात करते हैं। उसी के लिए हम एनर्जी क्वांटाइजेशन या क्वांटम मैकेनिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। हाउएवर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शोड दैट द क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्ड when we goes for the particles as small as electrons. Now we cover the next topic, that is it took until the 1920s to discover the appropriate concepts and equation for describing them. Now तो क्या था कि स्मॉलर लेवल के मटेरियल्स की स्टडी, उनके मोशंस और उनके प्रॉपर्टी की एनालिसिस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब क्या हुआ, एक क्वांटम मैकेनिक्स कैटेगरी, एक वास्ट कैटेगरी डेवलप हुई और जहाँ के द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस न्यू मैकेनिक्स आर डिस्क्राइब्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में कई सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं हम एनर्जी क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो हियर आर सम पॉइंट्स। नाउ वी विल फोकस फॉर द पॉइंट 1. Now what the point 1 is saying, the first point is saying the quantization of energy refers to the absorption or emission of energy in the discrete packets or quanta. ठीक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो या तो एब्जॉर्प्शन होगा या तो क्या होगा, एमिशन होगा। और वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन अगर हो रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट पार्ट्स में होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट पॉकेट्स और क्वांटा कहेंगे। मतलब पॉकेट के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा। सी now the second point, what does the point number 2 say? Actually the point number 2 say, as the intensity of electromagnetic energy increases or decreases, then what happens, then it steps up or down from quantized level to the another, rather than a flow or smooth path, a continuous curve. Its significance or its pictorial representation, you can see this image. ये पर्सन जो है यहाँ पे स्टेयर्स को यूज़ कर रहा है और यहाँ पे स्टेयर, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे स्टेप नहीं है, एक कंटिन्यूस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर्सन वॉकिंग अप स्टेप्स इंक्रीजेज इन स्टेप वाइज क्वांटाइज्ड मैनर। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर्सन वॉकिंग अप रैंप इंक्रीजेज इन यूनिफॉर्म और क्वांटाइज्ड और कंटिन्यूस मैनर। तो ये कंटिन्यूस मोशन की बात कर रहा है, क्वांटाइज्ड मैनर की बात कर रहा है, क्योंकि एक स्टेप में, हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, एनर्जी वो क्वांटाइज हो रही है। तो ये क्वांटाइज्ड एनर्जी क्वांटाइजेशन का एग्जांपल हम देख सकते हैं। नाउ दैट्स वाई द पॉइंट नंबर 3 says the establishment of energy quantization called for the replacement of classical mechanics. अब कौन कौन सी स्टडी है जिसके जो एनर्जी क्वांटाइजेशन में एनर्जी क्वांटाइजेशन को क्या किया, एविडेंट प्रोवाइड किया, वैलिडेट किया कि हाँ आप क्वांटम फिजिक्स के जो भी मेन मोटिव है वो सारे क्या है, फिजिबल है। तो वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, पहला प्रिंसिपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड क्या है, हीट कैपेसिटी, एंड द लास्ट वन इज
atomic and molecular spectra. And these 3 points are subjected toward the main studies. Now, here you can see the black body radiation. What the black body radiation? Actually, the black body radiation means the classical approach to the description body radiation results the sum of addition in all frequency ranges suggests that a black body would release an infinite amount of energy, contradicting the principal conservation of energy. Now here in this graph you can see the x-axis represents wavelength and the y-axis represents energy distribution. If the temperature increases, then what happens? The maximum of power lie on this point. Now here you can see the points related to the black body radiation. The black body radiation having some points as a good approximation to a black body is a pinhole in an empty container maintained at a constant temperature. ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, पूरी की पूरी 100% होती है। वो सारी चीज़ें क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एनी रेडिएशन लीकिंग आउट ऑफ द होल हैज बीन एब्जॉर्ब एंड re-emitted inside so many times. That's why it reflected around inside the container, that it has come in thermal equilibrium with the walls. Now see what happens actually जब भी आप एनर्जी क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्टिविटी होती है जो कि क्या होती है, 1 होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो रेले जीन्स लॉ जो होता है वो सक्सेसफुल हुआ, इसकी करस्पॉन्डेंस जो एनर्जी होती है ब्लैक बॉडी की उसके वेवलेंथ के लिए, ठीक। और वो क्या हुआ, जो ये लॉ हुआ, ये लॉ रेले जीन्स लॉ, दिस इज सक्सेसफुल for long wavelength, but it fails for the short wavelength, means high frequency के लिए क्या हुआ, ये फेल हुआ। तो क्या हुआ, कुछ इक्वेशंस हैं ऑसिलेटर्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो फिर उन सारे कॉन्सेप्ट को क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में लाया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट, द absurd result implies that a large amount of energy is radiated in the high frequency region of electromagnetic spectrum. And this is known as the ultraviolet catastrophe. According to the classical physics, even cool objects should radiate in the visible and ultraviolet regions. So objects should glow in dark. There should be in fact no darkness. क्या होता है कि the reality is that all the colors are black because when the light falls on the object, then which type of color reflect on our retina inside the eye, and that type of that color of object is considered on the eye or visualized by us. तो फिर क्या होता है, then we will proceed for further slide, and the next slide says about the black body radiation. Here you can see the Max Planck proposed the electromagnetic field could take up energy only in discrete amounts. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में प्लांक ने प्रपोज किया, क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको क्या किया,
जो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये लॉ जो हुआ कौन सा हुआ, दिस लॉ इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। और नाउ हियर यू कैन सी द theory related to the Planck, Max Planck density rho lambda t equal to 8 pi sc upon lambda to power 5 e to power sc upon lambda kt minus 1. Rho is the density, lambda is the wavelength, t is the time period, h is the Planck constant. And this fits the experimental curve at all the wavelength. और ये जो आप देख सकते हैं जो रिलेशन दिया हुआ रो इक्वल टू 8 बाई एस सी करके, ये कि सारे के सारे वेवलेंथ के लिए फिजिबल हुआ। तो पहले क्या हो रहा था, जो पहले प्रिंसिपल पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स में, वो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए तो फिजिबल था लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ के लिए नहीं फिजिबल था। और अभी जो ये रिलेशन है इसमें क्या होगा, ये हर टाइप के वेवलेंथ के लिए क्या हो गया, फिजिबल हो गया। नाउ द थर्ड पॉइंट, व्हाट द थर्ड पॉइंट सेज, the third point says this fits the experimental curve at all the wavelength already discussed. And now the last point express the exponential form of sc upon lambda kt. Now the main base for the heat capacities, now see what the heat capacity says. The heat capacities एक्चुअली क्वांटाइजेशन एनर्जी में जो बेसिकली हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद हम हीट कैपेसिटीज़ की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं फ्रेंच साइंटिस्ट जो है वो क्या किए, कोएफिशिएंट ऑफ वो CD की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक सॉलिड्स। और सेकेंड पॉइंट्स आप देख सकते हैं जो कि मोनोएटॉमिक सॉलिड्स के लिए सेम होता है, उसकी वैल्यू क्या हुआ है, लिखा हुआ है 25। Now here in this slide you can see topic is related to the heat capacities. तो जो यहाँ पे रैले ने जो अटेम्प्ट किया था ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट देने के लिए रेडिएशन के लिए, उसको कहीं ना कहीं पूरा जो मॉडिफाइड फॉर्म लाया वो कौन लाया, मैक्स प्लैंक लाया। लेकिन क्या हुआ लास्ट पॉइंट, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब रेफ्रिजरेशन टेक्निक की बात कर रहे थे तो ये अनफॉर्चुनेटली सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम देयर लॉ वर ऑब्जर्व when the advances in refrigeration techniques made it possible to measure heat capacity at low temperature. Now here the heat capacities, for the heat capacities what happened, it was found that molar heat capacities of all monoatomic solids lower than 3R at low temperature, and that the value approaches 0 at T goes to 0. So, then what happens, heat capacity value when T tends to 0, then what happened, it found that the molar heat capability of monoatomic solids lower than 3R at lower temperature. Now the second point say to account for these observations आइंस्टीन से तो आइंस्टीन ने क्या किया, एजम्पशंस माना कि जो एटम्स होते हैं, जो एटम्स ऑसिलेट करते हैं अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ। और आपको पता है कि जब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ एटम्स रोटेट करता है तो उसकी एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का अगर हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो हम जब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अगर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई एच के स्मॉल एच प्लैंक कांस्टेंट के साथ कर देते हैं, वो क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है। इट मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ वेव लेंथ इज लार्जर देन इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज लेसर एंड वाइस वर्सा। It means the second point is very important
because this point says about the equilibrium position of an atom with a single frequency tube. एटम्स की कई सारी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, सिंगल फ्रिक्वेंसी के साथ एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है. नाउ द व्हाट द third point says, actually the third point says, he then invoked Planck hypothesis. जो प्लांक का हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, h/λ होती है, where c the speed of light and speed of light having the numerical value 3 × 10⁻⁸ meter per second, and this is specifically to nhν where small n is an integer. अब क्या होता है, जब प्लैंक्स ने एज्यूम किया अपनी हाइपोथेसिस, तो इन्होंने क्या की, ये एनर्जी कैपिटल ई की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल ई एनर्जी का जो ऑसिलेशन से जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो कन्फाइंड हो गई डिस्क्रीट वैल्यू के साथ, उसको क्या वो क्वांटाइज हो गया, और स्पेसिफिकली इट इज़ specified to nhν. nhν means hν is the formula for energy, and with the help of hν you can calculate the value of energy, where small n is an integer. Now the third point related to heat capacity is the Einstein discarded the equipartition result and calculated the vibrational contribution of the atoms to the molar internal energy of solids and obtained the expression known as Einstein formula. तो क्या हुआ, आइंस्टीन ने फिर एक फार्मूला एस्टेब्लिश किया जो कि किसको कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल था, वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन. जो वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन है एटम्स का, किसके रेस्पेक्ट में, टोटल मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड. सबसे पहले एक एटम्स को आप ले लीजिए, उस एटम्स का क्या है वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन कितना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सॉलिड. तो क्या हुआ, जब हम एक एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी को लेते हैं और टोटल इंटरनल मोलर एनर्जी को लेते हैं, तो जो फ्रैक्शन हमको मिलता है वो किस उस जो एक्सप्रेशन जो मिलता है वो कौन से ला के अंतर में अंडर विच ला दैट एक्सप्रेशन कम्स, दैट ला इज प्रोवाइडेड बाय आइंस्टीन. आइंस्टीन फार्मूला हियर, दिस फार्मूला इज टर्म्ड actually this formula is in the term of frequency. Now next slide, what is the atomic and molecular spectra? What is the atomic and molecular spectra? Actually all the students, this session is totally subjected to the energy quantization. Here you can experience why we take a platform of the quantization. Either we talk about the Planck law, Rayleigh law, etc. Before to discuss this slide, already we have discussed about the black body radiation as well as molecular spectra introductory section as spectroscopy in the modern physics or except the classical physics. Now here in the atomic and molecular spectra, first point is the most compelling and direct evidences for the quantization of energy comes from the spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे आपको क्या होता है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का जो सबसे डायरेक्ट एविडेंस जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलता है. स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको एविडेंस मिलता है किसका, एनर्जी क्वांटाइज होने का. तो
एनर्जी के क्वांटाइज होने का अगर एविडेंस आपको मिल रहा है किससे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन दिस इज़ द वेरी important points that assist to provide the evidence related to the quantization of energy. Now the second point, spectroscopy is the detection and analysis of electromagnetic radiation absorbed, emitted and scattered by a substance. कोई एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस एनर्जी का रेडिएशन कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एमिशन कर रहा है, तो उसका एनालिसिस या डिटेक्शन कौन करता है? कोई भी सब्सटेंस है, ठीक, फेरस मटेरियल्स, नॉन फेरस मटेरियल्स, और हो सकता है कि उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो, इवन इलेक्ट्रॉन्स हो, पैरामैग्नेटिक हो, डायमैग्नेटिक हो, और फेरस हो, नॉन फेरस हो, कई टाइप के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। सब्सटेंसेस की अलग अलग डेंसिटी हो सकती है, डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, तो उसमें रेडिएशन, एमिशन और एब्जॉर्प्शन भी अलग अलग हुआ, तो उसका डिटेक्शन और एनालिसिस जिस मेथड से करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ द थर्ड पॉइंट, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट, द ऑब्वियस फीचर ऑफ बोथ इज दैट रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब एट अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि रेडिएशन जो है एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के पॉकेट के फॉर्म में, अलग अलग। मान लीजिए कि एफ फ्रिक्वेंसी जो समेशन है F1, F2 और Fn है, तो F1, F2, F3, F4 इस तरीके से Fn फॉर्म में एनर्जी क्या होती है? डिस्क्रीट फॉर्म में क्वांटाइज होती है, और इसी फॉर्म में क्या होती है? रेडिएशन एमिटेड या एब्जॉर्ब होती है एट अ सीरीज ऑफ discrete frequencies. Now see, the third point is related to atomic and molecular spectra. If the energy of an atom decreases by delta E, suppose एक एटम है, उसका एनर्जी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, किस अमाउंट से? डेल्टा ई। तो then in this case what happen? The energy is carried away as a radiation of frequency nu, and an emission line sharply defined E appears in the spectrum. क्या होता है? अगर कोई एनर्जी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं किस अमाउंट के साथ? डेल्टा ई, तो इसमें जो वेरिएशंस होते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में नज़र आता है, ठीक है, और उस फॉर्म में जो नज़र आता है उसमें क्या होता है? एक शार्पली डिफाइंड पीक होता है, शार्पली डिफाइंड पीक होता है, और एक एमिशन लाइन होती है, ठीक है। द एनर्जी इज कैरीड अवे एज अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, एंड एन एमिशन लाइन ए शार्पली डिफाइंड पीक अपीयर्स इन द स्पेक्ट्रम। तो ये शार्पली डिफाइंड पीक जो रेडिएशन लाइन जो हमको मिलती है उससे हमको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि डेल्टा ई एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। नाउ फाइनली द लास्ट पॉइंट सेज that a molecule under a spectroscopic transition, a change of state when the Bohr's frequency takes place, change in energy is equal to hc by lambda h nu. Okay, तो इस तरीके से हम आपको क्या भी बता दें कि एटॉमिक और मोलिकुलर स्पेक्ट्रा का किस तरीके से हम सिग्निफिकेंस जान सकते हैं क्वांटम फिजिक्स में, वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जान सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको स्पेक्ट्रम मिल जाता है, स्पेक्ट्रम जो लाइन हमको मिलती है रेडिएशन लाइन एक शार्प पीक के साथ होती है, जैसा कि हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट्स में देखे हैं, किसके लिए? चेंज इन एनर्जी के लिए, और चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc by लैम्डा। तो आज के सेशन में हम आपको सबसे पहले बताया कि किस टाइप से एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है, और एनर्जी का क्वांटाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है। एनर्जी क्वांटाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो केवल और केवल क्या होता है? एक क्लासिकल मैकेनिक्स जो चीज़ें नहीं कर पाया वो क्या करता है? क्वांटम मैकेनिक्स करता है। और क्वांटम मैकेनिक्स यही कहता है कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट्स होता है। जैसे कि स्टेयर्स का एग्जाम्पल लिए थे, you can see this slide,
दिस पर्सन्स ये जो आदमी है उसको कुछ स्टेप चढ़ने पड़ रहा है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप इस तरीके करके। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सेकंड पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज। तो एनर्जी घट या बढ़ रही है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो क्वांटाइज फॉर्म में होता है। जैसे कि एक स्टेप चढ़ेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, लेकिन ये क्या है, ये कंटिन्यूस बात है। तो ये जो इस स्टेट्स वाला एग्जाम्पल है, ये एक क्वांटाइज फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिखाया गया है, ठीक है। और जो एनर्जी क्वांटाइजेशन का जो मेन एविडेंसेस मिले वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मिला, हीट कैपेसिटी से मिला और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से मिला, ठीक है। ओके, थैंक यू।